Fish is the animal that include in the subphylum Vertebrata. We have discussed about the two subphylum of um, Chordata. One is the Urochordata and the other one is the Sphelochordata. In the subphylum Vertebrata, we will discuss the other classes. In the subphylum Vertebrata, it is the more diverse subphylum of Chordata. Subphylum Chordata जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो बाकी दो जो सबफाइलम है हमारे पास स्पेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा उनसे ये मोर अबेंडेंट है, इसकी वैरायटी ज़्यादा है, मोर डाइवर्स है। इसमें हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे और सबसे पहली जो क्लास है वो है फिश। फिश के लिए कहा जाता है, इट इज सेड अबाउट द फिश दैट दे आर adopted बिफोर द 500 मिलियन years ago। और इसके लिए कहा जाता है कि ये आज तक अभी तक ये डोमिनेंट है वेयर इन द वाटर एनवायरनमेंट। ओके, और इट इज सेड अबाउट द फिश दैट दिस इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रेटा। इसी फिश से तमाम अदर क्लासेस जो हैं वो क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। ओके, so this fish is included in the subphylum Vertebrata. What does it mean? That they have the vertebra. Vertebra means the vertebra is the structure that is present in the vertebrates, in all the vertebrates, and that surround the spinal cord. Okay, and what's their function? For the protection as well as axial support. Okay, protection of the spinal cord as well as provide the support. In the all the vertebrates, they have also a skull for protection the brain. Okay, कहा जाता है कि फिशेस जो हैं वो किस में आती हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आती हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसका सब फाइलम है, कॉर्डेट्स का। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि सबके पास वर्टिब्री होगी। वर्टिब्री का मतलब क्या होगा कि वो स्पाइनल कॉर्ड को उसने प्रोटेक्ट किया होगा, उसने सराउंड किया होगा स्पाइनल कॉर्ड को। सेकेंडली क्या होगा, उसकी वजह से सपोर्ट मिल रही है, एक्सियल सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, सेकेंडली वर्टिब्रा में क्या है, वर्टिब्रा में तमाम के तमाम वर्टिब्रा में स्कल है फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी, ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। Okay, it is said about the vertebra, it is said about the fish that they are, they have some molecular evidences। इसकी वजह से कुछ molecular evidences हैं जो ये बताते हैं कि vertebra का lineage या vertebra का connection 750 million years ago back है। ओके, क्योंकि 750 मिलियन ईयर अगो हम पीछे अगर उसका मॉलिक्यूलर एविडेंसेस देखें तो इसका लीनिएज निकल आता है, यानी कि कोई ना कोई मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के थ्रू ये पता चलता है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक 750 मिलियन ईयर अगो पहले आया था। इन द व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिश, we will see the subphylum Vertebrata. The subphylum Vertebrata we have the agnathans. Agnathans mean A mean without, gnathans mean jaws. So they are those, obviously we are studying about the fish. So in the agnathans we will also discuss about the fish. So in the agnathans we will discuss those fish species that do not have jaws, that are the without jaws. A mean without, gnathan mean jaw. So without jaws, okay, they are without jaws but have the paired appendages. Okay, they, if they have fins, they would be paired. They have the cartilaginous skeleton. Okay, they have the notochord that is persistent throughout their life. Okay, having the two semicircular canals which after the fune became the two. Okay, तो एक सेमी सर्कुलर कैनाल है फिशेज में। ओके, बट फ्यूम के दौरान वो दो लग रही होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा है agnathans. Agnathans mean without jaws. So they are the fishes having no jaws. Jaws, like jaws. Okay, but having the paired appendages होती है।
स्केलेटन कार्टिलेजिनियस का बना होता है, कार्टिलेज का स्केलेटन होता है। हमने पढ़े थे 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। हमने ये कहा था कि वो किसी न किसी स्टेज पे रहते हैं, आइदर डेवलपमेंट के दौरान या अडल्ट के दौरान। बट इन द agonethms, the notochord remain as it is present in the adult, as it is present in the larvae toward their adult and up to death. इनके जब तक throughout the life they have the notochords. ठीक है? Class Myxini. In the class Myxini, we will discuss about the hagfishes. Hagfishes के बारे में हम पढ़ेंगे Myxini, class Myxini. In the class Myxini, they are having the pure tentacles, okay? And they have 5 to 15 pair of pharyngeal slits. The lampreys and hagfishes are mostly are in the different classes, and they are in different classes because they have the different number of pharyngeal slits, and they have one have the olfactory sac while the other do not have the olfactory sac. In the Myxini, in the hagfishes, they have the olfactory sacs that opened in the mouth. While in the class of Phallopodomorphi, in which the lamprey is the representative member, they have the 7 pair of pharyngeal slits. Okay, 7 pairs. It means 7 pairs means 14 pharyngeal slits. But in the Myxini, they are not confined. They are varying from 5 to 15 pairs. Okay, and they have the blind olfactory sacs. यहाँ पे लैम्प्रे के पास blind olfactory sac है, जहाँ जबकि हैग फिशेस के पास वो blind नहीं थी, वो open थे. कहाँ पे open थे? Towards the mouth. The next class is about the conductous fish. Conductous fish means the shark is the representative fish. Shark आती है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी क्या है, टेल फिन जो है वो एक तरफ ज्यादा लोब बनाया हुआ है अपर साइड पे. ठीक है, अपर साइड पे उसका ना लोब एक निकला हुआ होता है, बराबर नहीं होती उसकी टेल. उसका एक फिन जो है वो ऊपर वाली साइड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो टेल को एक स्ट्रक्चर देता है उसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल टेल. एक होता है हेट्रोसर्कल टेल, एक होता है होमोसर्कल टेल. हेट्रोसर्कल टेल इज एक्चुअली दैट टाइप ऑफ द टेल जिसमें क्या होती है, बराबर दोनों लोब्स नहीं होते. तो इन द केस ऑफ शार्क, अपर लोब जो होता है वो बाहर की तरफ होता है. स्केलेटन बना होता है कार्टिलेजिनियस का. दे डू नॉट हैव द अपर्क्यूला. अपर्क्यूला एक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो कंट्रिक्टिस फिशेस में अपर्क्यूला नहीं होती, एंड दे हैव द स्विम ब्लैडर और लंग्स. नेक्स्ट वन इज about the elasmobranchi. In elasmobranchi, we have the States rays. Here, the cartilaginous skeleton may be partially ossified. What does it mean? It means that the cartilaginous skeleton is present, okay, but the ossification is going to be started here. Okay, now the ossification यानी कि वहाँ पे अब calcification start होने लगी है, वहाँ पे ossification start होने लगी है. वहाँ इसका मतलब ये है कि कुछ हिस्से तक वहाँ पे bones आने लगी हैं. ठीक है, so it means that elasmobranchi is a bridge between the conductous fish and our advanced bony fishes. They have the placoid scales. Okay, अगर scale नहीं है तो it's okay. अगर scale है तो placoid scale है. Placoid scale are the primitive scales. सबसे पुराने जो scales हैं वो placoid scales हैं. Okay, next one is the subclass Holosphaly. Holosphaly now students, they have the pharyngeal slits that is covered by the operculum. अब यहाँ Holosphaly में क्या आ गया, pharyngeal slits को कवर कर दिया, operculum नहीं कर दिया, लेकिन इनके पास कोई scales नहीं है. इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है रेड फिश की आती है. ओके, लेटरल लाइंस रिसेप्टर्स इन एन ओपन ग्रूव प्रेजेंट हैं. लेटरल लाइन सब नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन वो किस टाइप में है, यहाँ पे ओपन ग्रूव्स की टाइप में प्रेजेंट है. हॉलोस्फैली में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चे, यहाँ पे ओपर्क्यूलम आ जाता है फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर. ठीक है, इसका ये जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, यहाँ पे ओपर्क्यूलम आता है और उसके पास कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट. Next one is the osteichthyes fishes. Osteichthyes fish mean bony fishes. Advanced fishes are known as the
ऑस्ट्रिच फिश, इट मीन्स दैट ऑस्ट्रिच फिश को बोनी फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्केलेटन है वो कम्प्लीटली क्या होता है, ऑसिफाइड होता है, ठीक है। सो दे हैव द अपर फिलम भी आ जाता है। pneumatic sacs function as the lungs of swim bladder. Pneumatic sacs function क्या मतलब है कि they have a connection with the gut. gut के साथ एक connection होता है और वो आगे जाके थोड़ा सा bulging हो जाती है जो कि क्या बना देता है, swim bladder बना देता है या lungs बना देता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्योंकि हम इनलैंड फिश ज़्यादा पढ़ते हैं तो जो आजकल हम इनलैंड फिश देखते हैं दे आल अबाउट बोनी फिशेज हैं, ठीक है, ये बोनी फिश हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट वन इज द सब क्लास सार्कोप्टेरिजी। सार्कोप्टेरिजी को लोब फिन्ड फिशेज भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज देयर फिन्स आर मस्कुलर लोब्स, इनके पास लोब्स हैं और इसलिए इनके पास क्या है, इनके पास लंग्स भी हैं, ठीक है। सो दे आर आल्सो नोन एज द लंग फिशेज। ओके, next class is about the actinopterygii. Subclass actinopterygii, they are also known as the ray finned fishes. It means that the fins हैं लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास they are supported by the rays. ओके, उनके पास रेज हैं और इनके पास क्या है, मोस्टली दे हैव द टेल विद द होमोसर्कल। इनके पास जो बोथ लोब्स आ जाते हैं वो क्या है, होमोसर्कल आते हैं, बोथ टेल्स बराबर आ जाते हैं, इक्वल इनकी लेंथ होती है, इक्वल इनकी फिन्स की लेंथ होती है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग ऑल दिस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वी हैव स्टार्टेड द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा हमारे पास फर्दर डिवीजन होती है, जो मेन डिवीजन होती है, ग्नेथन्स और ग्नेथन्स होती है। ए मीन विदाउट, ग्नेथन्स मीन जॉस। सो इट मीन्स दैट द फिश इज विदाउट द जॉस। इसमें हमारे पास लैम्प्रे और हैग फिश आती है। ओके, हैग फिश इज इन द क्लास मिक्सेनी। इसमें क्या है, इसमें टेंटेकल्स हैं और इसमें pharyngeal slits कितने नंबर है, 5 to 15 पेयर। While in the lamprey they have confined number, they have 17 pairs of pharyngeal slits. It means that they have 14 pharyngeal slits. Okay, conductus fish इसमें हमारे पास shark आती है। It means that they have the cartilage skeleton, ठीक है। अपर क्यूला इसका प्रेजेंट नहीं होता, अपर क्यूला एक कवरिंग होती है, फ्लिप लाइक कवरिंग होती है जो कि कहाँ होती है, गिल के ऊपर होती है। इलास्मोब्रैंकाई में हमारे पास स्केट्स और रेज आते हैं और ये हमारे पास कंडक्टिव फिश से थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे आ जाती हैं कि इसमें क्या होती है, इसमें प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं। ऑल दो प्लेकॉइड स्केल्स शार्क्स में भी होती हैं, लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है वो क्या होता है कि ये पार्शली ऑसिफाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, पार्शली ये बोन्स की तरफ चली जाने होती हैं। यहाँ पे कंडक्टिव फिश से जो कार्टिलेज बना, जो स्केलेटन बना हुआ है वो कम्प्लीटली किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। जबकि हमारे पास इलास्मोब्रैंकाई में यही जो स्केलेटन है वो पार्शली किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, बोन्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट इज द क्लास, सब क्लास होलोसेफेली। इसमें रेड फिशेज आती हैं और इसमें क्या है कि यहाँ पे ओपर्क्यूलम आने लगता है, किसके ऊपर, फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर, यानी कि जो गिल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज वाटर के साथ नहीं होती, यहाँ पे ओपर्क्यूलम आ जाता है। ऑस्ट्रोथिस फिश आ जाती है बच्चे, इसमें हम बोनी स्केलेटन पढ़ते हैं, बोनी फिशेस पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास जो स्केलेटन होता है वो तमाम का तमाम रिप्लेस हो जाता है, किसको रिप्लेस करता है, कार्टिलेज को रिप्लेस करता है बोनी स्केलेटन। दे हैव द स्विम ब्लैडर्स, निमेटिक सैक्स, निमेटिक सैक्स यानी कि जो स्टमक है उसके साथ ही अटैच होता है, इसमें कनेक्शन होता है, स्विम ब्लैडर का अटैच होता है, ठीक है। और अपर क्यूलम को कवर, अपर क्यूलम जो होता है हैव टू कवर द गिल ओपनिंग। ओके, इसमें एग्जांपल है हमारे पास बोनी फिशेस। Class Sarcopterygi, also known as the lobe fishes, it means that they have the muscular lobes. fins हैं जो कि किससे हैं, लोब से बने हुए हैं और इसमें इनके पास लंग्स हैं। सो एग्जांपल्स आर लंग फिशेस एंड सिलोथेंसा। नेक्स्ट इज द एक्टिनोप्टेरिजी। इसमें रे फिन्ड फिशेस आती हैं। What does it mean? That they have the fins, but the fins are supported by the rays. ओके, इसमें हमारे पास जो लोब होगा वो दोनों लोब्स के आर इक्वल, सो दे आर नोन एज द होमोसर्कल टेल। So it is said about the uh, class fish that
इसको जब मैंने आपको स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि दे आर जो ट्रेडिशनली इसको डिवीजन की जाती है, एक हाई लेवल की डिवीजन होती है, सुपर क्लास डिवीजन होती है। इसकी दो क्लासेस हैं, वन इज द एगनेथन्स एंड अदर वन इज द गनेथन्स। एगनेथन्स मीन दैट आर having no jazz, okay, or paired appendages, and while the other having the gonadotropes, like having the jazz. एक नेथन्स में हमारे पास लैम्प्रेज आते हैं, ओके, और ग्नेथोस्टोम्स में हमारे पास, ग्नेथन्स में हमारे पास ऑल द फिशेस हैविंग द जार्स, ओके, जार फिशेस आ जाते हैं। So why we called a fish as a fish? So what is a fish? How can we explain a fish? Okay, हम fish को कैसे explain कर सकते हैं? A fish is an aquatic and environment animal. एक fish एक ऐसा animal है जो aquatic environment में रहता है, लेकिन कौन सा animal है? Vertebra, ठीक है, vertebrates में आता है। ये एक ऐसा vertebrate animal है which live in aquatic environment. ओके okay? और फिर उसकी क्या है, उसकी कुछ स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिर उसके कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे फोर्सफुली क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम आप एक्वेटिक ही एनिमल हो, ठीक है, लाइक उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसका स्विम ब्लैडर, उसका गिल्स। सो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके एक फिश को एक्वेटिक एनिमल बनाते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रा बनाते हैं। सो for the movement of fish in the water, it's difficult for a fish to move in the water, okay, so they have fins. fins उसके पास होते हैं, और उसकी बॉडी वॉल पे ऑब्वियसली क्या होगा, मसल बंडल्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, अगेंस्ट द, ये जो सराउंडिंग वाटर है इसके अगेंस्ट इसको मूव कराएंगे। हमेशा फिश पानी के साथ ही तो मूव नहीं कर रही होती ना, अगेंस्ट द वेव्स भी मूव कर रही होती है, ठीक। तो व्हाट दे हैव द fins एंड दे हैव द मसल बंडल्स। जब भी स्टूडेंट्स हम अमूमन हम फिश ले रहे होते हैं, फिश खा रहे होते हैं, तो जब भी हम फिश को ले रहे होते हैं तो आपने बहुत सारे मसल बंडल्स देखे होंगे उसमें, ठीक है। वो मसल बंडल्स क्या आपस में अटैच होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्सपोस्टीरियरली और एंटीरियरली इन जिगजैग फैशन में अटैच होते हैं। जिगजैग फैशन में उनके अटैचमेंट की वजह से जब उनमें कंट्रैक्शन आती है तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपकी बॉडी वॉल के अगेंस्ट वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो वाटर के अगेंस्ट मूव करा लेती है अपने स्पेसिमन को, ठीक है। क्या होता है कि ये जो मसल्स अब कैसे अरेंज होते हैं, ये आपस में जिगजैग के फॉर्म में मसल फाइबर्स अटैच होते हैं, और जब इनमें प्रेशर इन्होंने मूव कराना होता है, ये प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि ये प्रेशर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन होती हैं ये ईच मसल बंडल में मूव करती है, वो इतनी रिलेटिवली लार्ज होती है, इतनी पावरफुल होती है कि एक एनिमल को अगेंस्ट द वाटर वेव्स ये मूव करा देती है। So, discussing about the nutrition and the digestive system of the fish. So, it is said about the fish that the earliest fish means the primitive, the पहली वाली fish थी, वो क्या थी, वो mostly scavengers थी या filter feeders थी। The scavengers, what does mean? Scavengers mean they take their foods from dead food, from the decaying organs, like and decaying organs से लेती थी, या from the bottom से लेती थी, जैसे dead mollusks हैं, annelids हैं, या कोई भी डेड एनिमल इनवर्टिब्रा है जो कि कहाँ पे है, बॉटम पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से अपनी फीड लेती थी। सो इट मीन्स दैट द अर्लीस्ट फिश पर क्या थे, स्कैवेंजर्स थे और फिल्टर फीडर्स थे इन देयर फीडिंग हैबिट, ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उनकी एवोल्यूशन हुई, कहाँ उनकी जास में एवोल्यूशन हुई, तो इसी तरह क्या हो गया, उनकी फिश न्यूट्रिशन भी चेंज हो गई, ठीक है, और वो क्या हो गए, एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट प्रीडेटर्स बन गए। क्या हुआ फिश में, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे दे आर एडवांसमेंट इन देयर फीडिंग हैबिट, सो ऑब्वियसली
there are some modern fishes जो क्या हो गए थे, they became the predators. Obviously अगर predators हुए तो वो क्या करते हैं, they spend a lot of their time for the searching of food, okay, for searching their prey. तो वो क्या करते हैं, अपना काफी टाइम किस में लगाते हैं, प्रे को ढूंढने में लगाते हैं. Some fish feed on invertebrates, invertebrates को करते हैं. Some fish depend on planktons. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, कुछ डिकेइंग एनिमल पे करते हैं, कुछ बॉटम फीडर होते हैं, कुछ सरफेस फीडर होते हैं, कुछ कॉलम फीडर्स होते हैं. तो क्या है कि इसी तरह जैसे जैसे टाइम के साथ जहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुई ऐसे ही फीडिंग हैबिट चेंज हुई. ठीक है. Many feeds on invertebrates, many feed on vertebrates, many feed on larvae, many feeds on plankton, many feeds on small fish, many feeds on large prey, many feeds on annelids, many feeds on mollusks. So क्या हुआ, फिश वैरायटी, फीडिंग वैरायटी भी बहुत ज़्यादा चेंज होने स्टार्ट हो गई. ओके. इवन फिश क्या करता है, पूरा का पूरा प्रे भी स्वेलो कर लेता है. ओके. Teeth are present here, and the function of teeth is for holding the prey. Okay. Some, obviously the teeth are also act as a crushing the shells of mollusks, crushing the hard area of the exoskeleton. So the function of teeth is changes according to the animal bearing the teeth. Okay. सम आर यूज्ड द टीथ फॉर द कैप्चरिंग, कुछ कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ क्रशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अपने प्रे को कैप्चर करके उसको क्रश करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन द, अगर हमारे पास जो प्रे है वो मोलस्कन्स हों या क्या हों, एनालिड्स हों या आर्थ्रोपोड्स हों, तो उनकी उनकी जो एक्सोस्केलेटन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए व्हाट दे यूज़ द टीथ. Okay, students. For efficient capturing and for rapid capturing, fish also use another mechanism known as the suction. Suction में क्या करते हैं? Suction करते हुए students ये एक negative pressure develop करते हैं, जिसकी वजह से prey बहुत ही rapidly inside the body या inside the mouth move कर देता है. Okay, students, now we have some examples here with the feeding strategy. For example, paddle fishes, whale sharks. They are the filter feeders. Okay, what does filter feeders mean? They take the water inside their body and take the plankton, obviously small animals, small floating animals inside the body and capture that food and exit the extra water. Okay, so they are the filter feeders. But we have the carps. A carp's a good example. Mostly in the dam, in the Mangla dam, we have a carp. Like you have heard about the thela, mori, silver carp, big head carp. They are all the types of the carps. They are mostly herbivores. Okay, and also as a act as a omnivorous. Lamprey act as an external parasite. Okay, and when we are talking about the carp, and in the carp we have a big head carp and grass carp. The name show that the grass carp feed entirely on the plants. So we have a herbivory feeding also present in the fish. Some fish also change their feeding habit with the passage of time, with the not with the passage of time exactly, with their life stages. For example, when they are larvae, they are feed on the small planktons, and when they are become adult, they switch over to large prey like animal matter, mollusks, annelids. Okay. So when we discuss about the circulation and gas exchange in the fish, they are actually the closed circulatory system. They follow a closed circulatory system.
Okay, the red blood cells having the hemoglobin, and they have the arteries, capillaries, and veins. They have the lungs, or they have the gills, and these lungs or gills are is actually the parallel evolution with the circulatory system. Okay, but they have closed circulatory system as well as they follow a unidirectional circulatory system, and the ventricle and atrium are not partially, are not completely divided, they are partially divided. So in fish, the separation of oxygenated and deoxygenated blood is not completed. I'm talking about the circulatory system and gas exchange in water in fish. In fish, the red blood cells having the hemoglobin and having a closed circulatory system, that means the blood moves in the arteries, in the closed vessels, in the arteries, in the capillaries, in the veins, having a heart for uh, pumping the blood. Similarly, they are having the single circuit system and having uh, partially um, separation of atrium and ventricle. It means that the separation of oxygenated and deoxygenated blood is incomplete in heart. In fishes, the blood flows from the venous system. Okay, when we are talking about the venous system, so that's from the sinus venosus towards the atrium, then towards the ventricle, from the conus arteriosus in the finally in the ventral aorta. There are two words, afferent and efferent. When we are talking about the afferent, word afferent with the A-double-F-E-R-E-N-T, there are two vessels, afferent vessel and efferent vessel. The word afferent vessel means the blood carries to the gills. Okay, when the A mean afferent vessels carry blood to the gills, it are always the afferent. When it become efferent vessel, it take the blood towards the body. Okay, towards the gills, afferent, efferent towards the body. So the afferent vessels and efferent vessels are also involved for passage of blood. As I have already told you, the atrium and ventricle is partially divided, and it doesn't keep the unoxygenated blood and oxygenated blood from mixture. Okay, so here somehow the oxygenated and deoxygenated blood is mixed here. Here there is somehow the distinction between a pulmonary circuit and a systemic circuit. Here you can see in the circulatory system of fish, the blood, that there is the systemic circulation, and this is the gill circulation, pulmonary circulation. Okay, pulmonary means the lungs or the gills. Here the heart pumps the blood towards the gills. Okay, the direction of arrow move this blood towards the gills. From here, the deoxygenated blood is converted to the oxygenated, and this oxygenated blood moves directly from these gills towards the body, towards the systematic circulation. Systematic circulation mean the body circulation, and gill circulation mean, or pulmonary circulation mean, the blood is going towards the gills. So here we have divided the systems, the circulation into two systems. One is gill circulation or pulmonary circulation, other one is the systemic circulation. Here you can see the heart move this circulation in one direction. Okay, while when we see in other high vertebrate, we can see the heart have a complete power. It will move this heart towards the lungs, and from lungs this heart move again towards the heart, and heart has a powerful complete power, send it towards the blood body and towards the gill.
but here the heart has just a single circle. It will move this deoxygenated blood towards the gills, and from gill this oxygenated blood moves towards the body. सो बच्चे यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो फिश का है वहाँ पे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है. Okay, closed but single circulatory system. What does it mean? Closed means they are confined, they are moving in the vessels. Vessels में move कर रहा है, ठीक है. Open sinuses में नहीं move कर रहा, it is move in the vessels. But the next one क्या है कि यहाँ से जो blood move कर रहा है, ये किधर move कर रहा है? Towards the gills. ठीक है. फिर गिल्स से होता हुआ ये मूव कर रहा है, गिल्स में जाता है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके ये बॉडी में जा रहा है. यानी कि ब्लड जो हार्ट है वो सिर्फ सिंगल सर्किट का रोल प्ले कर रहा है. ये देखिए एक तो बॉडी में सिंगल सर्किट हो गई, ये सिंगल सर्किट है. जबकि जब हम हाई वर्टिब्रेट्स में बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ डबल सर्किट हो जाएगा. वो कैसे कि हार्ट पहले लंग्स को देगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को आएगा, फिर हार्ट वही ब्लड किसको देगा, बॉडी को देगा, और फिर बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट रिसीव करेगा, और फिर इसका ये क्या हो जाता है, ये डबल सर्किट हो जाता है. ठीक है. यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि एडवांसमेंट क्या आई है, यहाँ पे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन आ गई है. So discussing about the gas exchange in the fishes. So the environment is water, which have less amount of oxygen. How much? 2.5% lesser oxygen than the air. Okay. So the oxygen, so the animal living in the water, they have some capability to take the oxygen from the water. Okay, so in this case the fish have some gill surfaces for the muscular pumping. Okay, for the active pumping. क्या है कि 2.5% हमारे पास ऑक्सीजन कम है इन द वाटर एज कम्पेयर टू एयर. सो तमाम वो एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, दे शुड हैव सम कैपेबिलिटी, दे शुड हैव सम हाई कैपेबिलिटी टू गेन द टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम, टू एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. उनके पास ऐसे हाई कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें. ठीक है, मस्कुलर पंपिंग होनी चाहिए. सो दे हैव द गिल्स as well as they have the apicula and they should have the muscles. Okay, तो मसल्स जो फेरिंक्स को साउंड किए होते हैं और एपरकुला के साथ होते हैं, उनके पास पावर होती है, पंपिंग की पावर होती है. ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ले सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो सके. ठीक है. अब हर जो स्पीशी है, हर फिश है, फिश ने अपने मुताबिक कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज ली हैं. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एलास्मोब्रैंकाई. ठीक है, एलास्मोब्रैंक्स कौन से थे, जिसमें स्केट्स आती हैं हमारे पास, या ओपन ओशन बोनी फिशेस हैं. वो क्या करती हैं, वो अपने माउथ को ओपन रखा होता है वाइल स्विमिंग करते हुए. दे कीप देयर माउथ ओपन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंटर हो सके. इस मैकेनिज्म को रैम वेंटिलेशन कहते हैं. ये भी फोर्सफुली पानी एंटर कर रहे हैं. ठीक है, वाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव अपर्कुला नहीं है, उनकी फ्लिपिंग नहीं है. कहाँ पे, उनके गिल्स के ऊपर फ्लिपिंग नहीं है जो फोर्सफुली वाटर को एंटर करें. सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस मैकेनिज्म को कोप अप करने के लिए they have switched our other strategy, which is opening of their mouth while swimming. Similarly in the shark, they do not have the opercula. तो उनके पास opercula नहीं होते, तो वो क्या कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने अपने आप को मूव करना होता है. And they do not have the swim bladder, otherwise they sunk into the water. अगर वो मूव नहीं करेंगे तो वो संक हो जाएंगे. So they have to, they keep moving. Okay,
स्पायरकल्स एक और स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे होती है, माउथ पे प्रेजेंट होती है, हेड पे प्रेजेंट होती है, आइज के साथ प्रेजेंट होती है, which is also used as entrance of water. Okay, स्पायरकल्स प्रेजेंट होती है, और स्पायरकल्स एलास्मोप्रैंक्स में होती है, स्केट्स में होती है, जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं उनमें होती है, बिकॉज दे आर फ्लैटेंड एंड दे आर बॉटम डिवेलर्स, सो इन्होंने बॉटम में रहना होता है, तो इनके पास स्पायरकल्स होते हैं। स्पायरकल्स ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ होती हैं, जो इनके आइज के बिहाइंड होती है, ताकि वो हमेशा ओपन ही रहेगा, वो एरिया स्पायरकल्स हमेशा ओपन ही रहती, तो क्या है कि थ्रू स्पायरकल्स दे टेक मोर वाटर एंड इसका वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। So the gill is actually a major structure for gaseous exchange. For the gill, in the gill they have a gill arches. Gill arches are the structure that supports the gills. गिल आर्चेस फर्दर एक्सटेंडेड, उनकी एक्सटेंशंस हैं जिनको गिल फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। और गिल फिलामेंट्स के जो फोल्ड्स हैं, एपिथेलियल फोल्ड्स हैं, उसे फेरेंजियल लैमिला कहते हैं, फेरेंजियल लैमिला। ओके, अब जो ये आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं, ये कहाँ मूव करता है, ये गिल्स के साथ, और गिल्स फिलामेंट्स से होते हुए जाता है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ ये स्लाइड अबाउट द गिल्स, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गिल्स। गिल इज द मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसके लिए है, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गिल के पास गिल आर्चीज होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। गिल आर्चीज की एक्सटेंशन है जिसे हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं, और गिल फिलामेंट्स की जो फोल्डिंग एपिथेलियल फोल्डिंग है उसे हम फेरेंजियल लैमिला कहते हैं। स्विम ब्लैडर इन लंग्स। It is said about the lungs that they are evolution of swim bladder. ठीक है, as I have told you that in the sharks, in the conductous fishes, they do not have the swim bladders. So swim bladders नहीं है, तो वो क्या करते हैं, they have to move all the time, otherwise they will sunk, वो डूब जाएंगे अगर वो मूव ना किया। तो स्विम ब्लैडर क्या है बच्चे, स्विम ब्लैडर एक वर्ड यूज हो रहा है, कोई ब्लैडर लाइक चीज है जिसमें जो गैसेस से फिल हुआ है, गैसेस से फिल होने की वजह से क्या करता है, प्रेशर इनसाइड द बॉडी एंड प्रेशर आउटसाइड द बॉडी बिकम सेम, जिसकी वजह से हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है, जिसकी वजह से हमारी जो फिश है वो क्या हो जाती है, वो संक नहीं करती, ठीक। लेकिन क्या करती है, जैसे जैसे डेप्थ पे जाती है या जैसे जैसे सरफेस पे आती है, इसी तरह गैसियस का जो प्रेशर है वो इनसाइड द स्विम ब्लैडर चेंज होता है, जिसकी वजह से, क्यों चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ पे जाएगा ऑब्वियसली प्रेशर भी एनहांस होगा, तो उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए इसको ज़्यादा गैसेस चाहिए होती हैं, और सरफेस पे आने के लिए इसको कम प्रेशर चाहिए होता है। तो क्या होता है, डेप्थ के साथ भी वो अपना प्रेशर इनहांस या डिक्रीज करता है। अच्छा, न्यूमेटिक डक्ट के साथ इसका कनेक्शन होता है। न्यूमेटिक डक्ट क्या मतलब है, गट, गट के साथ जो प्रिमिटिव फिश थी जिसके पास स्विम ब्लैडर आया, उसका किसके साथ कनेक्शन आ गया, उसका कनेक्शन आ गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में ये कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो किस्म के स्विम ब्लैडर्स मिले, एक का कनेक्शन था और एक फिजियोस्टोमस बोलते हैं, एक को फिजियोक्लिस्टस बोलते हैं। फिजियोक्लिस्टस इसका कनेक्शन नहीं है, फिजियोस्टोमस इसका स्टमक के साथ कनेक्शन है। तो ये क्या करती हैं, एयर को अंदर लेते हैं, इस वजह से फैट्स को फिलअप करते हैं, और फिर उसको फिल करने के साथ ही जब उसमें ज़्यादा या कम होता है तो ऐसे ही चेंज करते हैं। और इस तरह ये कहा जाता है कि said about the swim bladder, that swim bladder ही इवॉल्व हुआ है लंग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आप हायर वर्टिब्रेट्स में देखें तो हमारे पास तो स्विम ब्लैडर नहीं है, तो स्विम ब्लैडर के स्ट्रक्चर को कुछ देखते हुए ये कहा जाता है कि स्विम ब्लैडर ही क्या हुआ है, लंग्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास लंग फिशेस कहाँ चाहिए होती है, हमारे पास ऑब्वियसली लंग फिशेस वहाँ चाहिए होती हैं जहाँ पे हमें एयर से ऑक्सीजन लेनी है, ओके। और एयर से हमें ऑक्सीजन कहाँ लेनी है, जहाँ पे हमारे पास वाटर कम होगा, जहाँ
पीरियडिकली ड्राई कंडीशन आ जाए या स्टेगनेंट वाटर आ जाए, ठीक है, या क्या हो जाए, कोई ऐसा चांस आ जाए कि हमारी फिश अलग हो गई है किसी वजह से, या क्या हो गया, कभी जब पानी ज़्यादा आ जाती है, आप मंगला की एग्जांपल ले लें, तो एक मंगला में एक साइड है खिड़क, तो वहाँ खाड़ी खाड़ी की तरफ भी क्या जाता है, पानी जाता है, और वहां मैंने विजिट किया तो वहां छोटी छोटी क्या बनी हुई है, पॉकेट्स बनी हुई है। अब क्या हुआ, वहां पे भी जब पानी बरसात ज्यादा है आजकल, तो वहां पे भी पानी का लेवल चला गया है, तो वहां पे भी ऑब्वियसली फिश हमारी मूव करेगी, लेकिन कुछ ऐसी पॉकेट्स बन के रह जाती हैं जहां पे हमारी फिश रह जाए, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही ड्राई कंडीशन होगी तो वहां पे पानी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे तो हमारी फिश क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी अगर वो गिल्स है। तो क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कंडीशन को कोप अप करने के लिए नेचर ने उन्हें क्या दे दिया, उन्होंने अपने आप को इस कंडीशन के लिए अडॉप्ट कर दिया। कैसे अडॉप्ट कर दिया, कि उन्होंने लंग्स को भी अपने अंदर इवॉल्व कर दिया। तो लंग्स की एवोल्यूशन की वजह से जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, जब ड्राई कंडीशन आती है, स्टेगनेंट वाटर आ जाती है, तो इस कंडीशन के लिए उनके पास क्या चीज़ आ गई, उनके पास लंग्स आ गए। So this is all about today lecture, students.